Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. This is Miss Sidra Iqbal, course instructor and visiting teacher of the Department of History and Arts, Division of Arts and Social Sciences, University of Education, Bank Road Campus, Lahore. Today I am here with the course title of Economic History of Pakistan for the program of Masters of History with the course code of HIST 4118. So I am here with the continuation of our previous lecture, Agriculture Development in Pakistan, Part 2. As we discussed in our previous lecture about the agriculture, about the percentage of peoples which dependent on agriculture and live in agriculture areas, we discuss about the livestock farming and also fish farming, and we discuss the types of fishes and how they produced. These all things we discussed in our previous lecture. Now we will continue our lecture in this part 2. We will continue our topic in this lecture. This is the part 2 of the agriculture development in Pakistan. Role of agriculture in producing resources of economic development of Pakistan. Agriculture contributes a lot in the annual production GDP in the economy of Pakistan. एग्रीकल्चर एक ख़ास मकदार में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन दी इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो जीडीपी है उसके अंदर एग्रीकल्चर जो है उसका एक ख़ास रोल है और उसकी एनुअल प्रोडक्शन का एक ख़ास हिस्सा जो है वो मौजूद है, या वो एक ख़ास हिस्सा जो है वो प्रोड्यूस करता है, क्योंकि 70% जो लोग हैं वो इसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता हैं. They belongs to the agriculture directly or indirectly, the amount of 70%, and they dependent to live their lives on agriculture. Pakistan earns foreign exchange by exporting some agricultural products like wheat, rice, cotton etc. पाकिस्तान जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज उस बाय एक्सपोर्टिंग उनको बरामद करके सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज को देके एक्सपोर्ट करके वो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करते हैं, जिसमें शामिल है वीट, गंदम, राइस, चावल, कॉटन, कपास etc. To sustain massive population, agriculture is playing a key role. Massive population जो है इसको सस्टेन करने में, या मैंने पहले भी बात की है कि उनकी जो डिपेंडेंस है वो लिविंग जो है उनका वो उसमें एग्रीकल्चर एक की रोल अदा करती है. एग्रीकल्चर इज़ हेल्पिंग मैनी इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान by providing raw material to these industries. अब दूसरी चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को भी हेल्प आउट करता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो इन तमाम जो दीज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. एग्रीकल्चर हेल्प्स द गवर्नमेंट बाय इंक्रीजिंग इट्स टैक्स रेवेन्यू. अब एग्रीकल्चर जो है वो गवर्नमेंट का जो टैक्स रेवेन्यू है उसको भी बढ़ाता है, इंक्रीज़ करता है. एक जगह से दूसरी जगह जब प्रोडक्ट्स लेके लाई जाती है या एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है तो इससे भी रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है.
Pattern of modernization in agriculture with reference of Green Revolution, which starts in 1958 to 1996. Pattern of modernization in agriculture with reference of Green Revolution 1958 to 1969. The Green Revolution of the mid-1960s, which brought increases in food production and rural incomes, and the sustainable modernization of agriculture. अब ग्रीन रेवोल्यूशन है मिड 1960s की, जिसने इंक्रीज़ किया फूड प्रोडक्शन को और रूरल इनकम जो है उसको सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर की सस्टेनेबल मॉडर्नाइजेशन जो है वो की है। जैसे मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता केमिकल्स हैं, लाइफ स्टॉक के लिए इंजेक्शंस हैं, फिश फॉर्म में भी ऐसी खुराक यूज़ की जाती है जो उसकी ग्रोथ को बढ़ाती है, पोल्ट्री फार्म्स में भी, और फसलों के लिए जो है वो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जिससे प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा आती हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है मिड 1960s की, इसने इंक्रीज़ किया फूड प्रोडक्शन को। The agriculture sector in Pakistan was modernized at a The agriculture sector in Pakistan was modernized at a great extent during Ayub Khan era. अयूब खान के दौर में जो है इसको बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया गया। As a result of land reforms introduced by Ayub, more than 4 million acres of land was released for public acquisition. As a result of land reforms की नतीजे के तौर पे which introduced by अयूब, जो कि अयूब ने मुतारफ़ करवाई, more than 4 million एकड़ लैंड जो है वो पब्लिक की एक्विजिशन के लिए रिलीज़ की गई। Due to his special attention on this sector, Pakistan in his era almost got self-sufficient in production of wheat. इसके इस अमल की वजह से इस टाइम पे जो पाकिस्तान है उसने एक ख़ास मिकदार में जो है वो गंदम की पैदावार हुई। प्रॉब्लम फेस बाय एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान। अब जहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं वहीं पे डिसएडवांटेजेस होते हैं, और पाकिस्तान के अंदर कोई भी इदारा इस तरह से नहीं है कि उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी ना पड़े। तो अब हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ रही हैं। नो मैकेनिज़्म हैज़ बीन अडॉप्टेड टू एरेडिकेट दी सोइल एरोजन। कोई भी मैकेनिज़्म जो हैं वो अडॉप्ट नहीं किए गए सोइल एरोजन को एरेडिकेट करने के लिए। इवन आफ्टर हार्वेस्टिंग, यहाँ तक कि हार्वेस्टिंग के बाद नथिंग इज़ डन टू इम्प्रूव और रिस्टोर दी सोइल एनर्जी और फर्टिलिटी। इवन काश्तकारी के बाद कोई भी नथिंग इज़ डन, हाँ, कुछ भी नहीं किया जाता ज़मीन और की एनर्जी और काश्तकारी को बढ़ाने के लिए। वाटर वेस्टेज इज़ वेरी हाई इन आवर कंट्री। जो पानी है उसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक जो है वो उसके इस्तेमाल को का इज़ वाटर जो है उस काफ़ी हद तक हमारे मुल्क के अंदर जो है वो ज़ाया होता है। Owing old method of cultivation and harvesting,
हमारे अभी तक जो है वो पुराने ही तरीके हैं काश्तकारी के भी और हार्वेस्टिंग के भी. The small farms are increasing in our country. स्मॉल फॉर्म्स जो हैं वो इंक्रीज किए जाते हैं मुल्क के अंदर. एज द लैंड्स आर डिवाइडिंग जनरेशन बाय जनरेशन. क्यों? अच्छा, अब बात यह है कि वही विरासत में जो ज़मीन होगी वो आगे बेटों में डिवाइड होती है, तो इस वजह से फॉर्म्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होते रहते हैं. वाटर लॉगिन एंड सेलेनिटी इन इंक्रीजिंग डे बाय डे. वाटर लॉगिन और सेलेनिटी जो है वो भी दिन ब दिन जो है वो इंक्रीज हो रही है. फॉर्म्स जो हैं वो छोटे हो रहे हैं. ठीक है. लैंड डिवाइडिंग जनरेशन बाय जनरेशन. ठीक है. ओल्ड मेथड ऑफ कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग जो हैं उन्हीं को हमने ऑन किया हुआ है. हम बहुत जो है लोग कहते हैं कि नहीं जी पुराने तरीके से जो है वो ठीक है, ये केमिकल्स और ये नई चीज़ें जो हैं ये हमारी कल्टीवेशन को नुकसान देंगी. रेमेडीज़ फॉर द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान. रेमेडीज़ फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन पाकिस्तान को, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है किसी भी किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं तो रेमेडीज़ मौजूद नहीं है. फ्यूडल शुड बी अबॉलिश्ड. फ्यूडलिज्म, अब सरमायादार जो ये जागीरदाराना निज़ाम है, जो नवाबों और सरदारों वाले निज़ाम है, क्योंकि इनके यहाँ इनके नाम पे हज़ारों एकड़ के हिसाब से ज़मीनें होती हैं जो कि क्योंकि ये काश्त नहीं करते हो बाज़ तो कई कई सालों से जब से पाकिस्तान बना है एक ह्यूज अमाउंट जो ज़मीन की है वो कभी काबिल काश हुई ही नहीं, उस पर काश्त की नहीं गई क्योंकि वो वडेरों या सरदारों के अंडर आती है. प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूटेड. अब जो प्रोडक्टिविटी का इन्हांसमेंट प्रोग्राम है, बढ़ाने का प्रोग्राम है, उसको भी कॉन्स्टिट्यूटेड जो है वो होना चाहिए. लेटेस्ट मशीनरी शुड बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स. अब ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है गवर्नमेंट का, इसको चाहिए कि फार्मर्स को लेटेस्ट मशीनरी प्रोवाइड करे. मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन. More dams should be constructed on Indus, Jhelum and Chenab rivers. इन तमाम दरियाओं के ऊपर जो है और डैम्स बनाए जाने चाहिए ताकि जो काश्तकारी है उसको फ़ायदा दिया जा सके. Source of employment. Pakistan as developing economy, the employment on consistent level has much importance. In this behalf, agriculture has much importance because it provides employment directly or indirectly to the public. Employment directly affects the GSP of economy as well as the per capita income. With the increase in per capita income, living standard increases, higher hygiene facilities and better education facilities are also increases. All these signs are the factors of the economic development. So we can say that agriculture has a great contribution toward economic development by providing the employment. अब जो अगर हम देखें तो लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेस होते हैं, इससे हायर हाइजीन फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी बनती हैं. जाहिर है जब किसान को एक अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी होगी, एक अच्छा होगा तो वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे भी खर्च करेगा. एग्रीकल्चर contribution toward economic development by providing the employment, इससे employment भी मिलती है. Transportation rule. Our sources of transportation are insufficient,
So regular supply of products is not possible to the market. हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो इतना इनसफिशियंट है कि रेगुलर सप्लाई जो है वो मोस्टली पॉसिबल नहीं है मार्केट्स में रेगुलर लेवल पे. द विलेज आर नॉट प्रॉपरली लिंक टू द मार्केट्स. जाहिर सी बात है अक्सर ही वो मार्केट से दूर होते हैं गांव. फॉर प्रॉपर प्रोविजन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द मार्केट there must be sufficient as well as fast means of transportation. Revenue system. Our farmers have to pay land revenue after the harvesting of each crop. So it forces the farmers to sell their products at low price. अब एक गलत बात जो है वो ये है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको लैंड रेवेन्यू देना पड़ता है हर काश्त के बाद, हर फसल की काश्त के बाद. सो ये फोर्सेस है द फार्मर टू सेल द प्रोडक्ट. उसको क्यों जैसे भी कीमत होगी उसको हर सूरत पे बेचना है क्योंकि उसको वो जो रेवेन्यू होता है वो पे करना है. मार्केट एडवाइजरी कमेटी MAC abbreviation Market Advisory Committee at district and tehsil level should be set up to provide technical advice and information to cooperative marketing societies. The officers of cooperative and agricultural department should be the member of committee. हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होनी चाहिए उनको मशवरे और इंफॉर्मेशन देने और कोऑपरेट करने के लिए. ठीक है. और जो ऑफिसर्स हैं कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वो ही इस कमेटी के मेंबर्स होने चाहिए. मार्केट रिफॉर्म्स. द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव द मार्केट सिस्टम. Strict rules and laws should be introduced. The prices of agricultural products should be checked by the inspectors in the market. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केट सिस्टम को इम्प्रूव करे और स्ट्रिक्ट जो असूल और कानून हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाने चाहिए. जो प्राइस है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो भी चेक होनी चाहिए. मार्केट्स के अंदर जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको ख़ास तौर पे चेक करनी चाहिए. So this is our topic of the agriculture development in Pakistan. I hope you can understand each and everything while listening these two parts. If you have any problem, if you have any query or any question which arose in your mind, you can comment in your Google Classroom where this link is given, or you can call me or sorry text me on WhatsApp if you have any problem. This is our agriculture and the most interesting topic which we discussed. So good luck students for the next lecture. Thank you.